Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Machine Design 2. In the last lecture, we have been discussing about helical gears. So आज जो है हम इस lecture को further extend करेंगे and we'll discuss about the helical gears, and there are some numerical questions that are related with the helical gears. We'll discuss those questions as well. So in the last lecture, there were some terms that were related with the helical gears. We have discussed those terms. इसमें आपके पास सिंगल हेलिकल टाइप थे, डबल हेलिकल टाइप आपके पास हेलिकल गेयर थे। डबल हेलिकल वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वेयर यू हैव टू मिनिमाइज द axial thrust or the end thrust because of the gradual mating of the gears in the helical gears and end thrust is produced. So to minimize that value, we use the double helix type or the double helical gears. कि इसमें क्या होगा कि जब आपका गेयर यहाँ से एक्सटेंड हो रहा होगा, मैशिंग हो रही होगी, जो एंड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके एंड पॉइंट के बाद उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक एक्सियल थ्रस्ट या एंड थ्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, जो उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देगा। So ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जिनके अंदर we have to minimize the axial thrust, we use the double type helical gears. So the term that we used last time in helical gears was the normal pitch, axial pitch, helix angle. Like in this equation, alpha is basically the helix angle. Here PC is basically the circular pitch and PN is basically the normal pitch. ये terms हमने last time discuss की थी. Then we use the term overlap or the phase width. Phase width overlap in case of helical gear, PC यानी कि pitch circle is equals to B into tan of alpha, where B is the phase width and tan of alpha is the angle of helix or the tan of helix. Then axial thrust find out करने के लिए we have the formula. We can calculate the axial thrust. WA is equals to WN sin of alpha, which is equivalent to WT tan of alpha, where WT is basically the tangential component of the load जो आप यूज़ करते हैं लिवाइज इक्वेशन के अंदर। लिवाइज इक्वेशन से हम इस पैरामीटर को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड WN is basically the normal component and alpha is again the helix angle. Here you can find out the B value. B is equals to 1.15 PC divided by tan of alpha in case of helical gear. So if the overlap is given or the B tan of alpha value is given, we can find out B. From here we can find out the pitch circle diameter. So if any of the parameters are known from this equation, these three parameters are basically correlated. If any two of the parameters are known, we can calculate the third value or the third parameter as well. Then in case of helical gears, we have formative of the equal number of teeth, because that value T is basically used to calculate the beam strength that is used in the Levi's equation or the tooth strength factor. So T is basically equal to T, that is basically the actual number of teeth that are given in the numerical data, divided by cos cube of alpha. Here again alpha is basically the helix angle. Now in this slide there are some limitations that have been given that we have to follow while the design case of a helical gear. We'll see in the next numerical, and these limits are defined by AGMA, and AGMA is basically American Gear Manufacturer Association. Here the pressure angle in case of helix angle can vary between 15 degrees to 25 degrees. Helix angle alpha can vary from 20 to 45 degrees. Addendum is basically 0.8 times of module. That is the maximum value we can take in design. Addendum have the minimum value 1 multiplied by the module. Yani कि 1 times of the module is the minimum value. We can take this value and any higher number. Minimum total depth
is 1.8 times of the module. This is the minimum value. We can take the value larger than that. Minimum clearance is 0.2 times of the module, and the thickness of the tooth has the value 1.57 times of the module. So these are the limits that have given by the EGMA. Strength of helical gear, we have discussed this Levi's equation last time also, where Wt is equals to sigma O multiplied by Cv B pi m into y. Here Wt is basically the tangential tooth load, sigma O is the allowable static stress, Cv is the velocity factor, B is the face width, m is the module, and y bar is the tooth form factor that has been calculated from the Levi's factor. And the value of Cv can be taken for the different values of the velocity. पिच लाइन वेलोसिटी जो हमारी आएगी उसकी वैल्यू से हम सी वी की वैल्यू लेंगे। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड के दरमियान होगी तो वील टेक द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन। अगर 10 से 20 के दरमियान होगी वील टेक द सेकंड इक्वेशन। इसी तरह 20 से ग्रेटर होगी तो दिस वन। और अगर नॉन मेटेलिक हमारे पास गेयर्स होंगे तो वी कैन यूज द फोर्स रिलेशन। इन द डायनामिक टूथ लोड इस केस में अगेन आपके स्पर गियर की तरह ही होगा। WD is equals to WT plus 21 into B, BC cos square alpha plus WT cos of alpha divided by 21B plus under root BC cos square alpha plus WT. Here V, B and C are the basically constants. V is the velocity, B is the face width and C is the constant. Similarly, static tooth load have the same equation. Ws is equals to sigma E B pi m into y. The only difference in the static tooth load equation is here in Levi's equation we have Wt, लेकिन स्टैटिक के केस में Ws आ जाएगा और यहाँ पे अलाउेबल स्ट्रेस की जगह पे इलास्टिक स्ट्रेस या एंड्योरेंस आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी सिग्मा ई। और वियर लोड का ये फार्मूला है W is equals to dpb qk divided by cos square alpha। अब यहाँ पे आपके पास dp जो है ये डाया ऑफ द पिनियन है, b is the face width, q and k are basically constant and alpha is the helix angle। k जो है आप यहाँ से डाउनलोड फाइंड आउट कर सकते हैं। k is equal to sigma es square sin phi n divided by 1.4 into 1 over EP plus 1 over EG. Here phi n is basically the normal pressure angle and that is equals to tan of alpha multiplied by tan of phi multiplied by cos of alpha. So this angle is basically the tan and cos multiplication of the helix and the gear angle. So now we will discuss the first design question that is related with the helical gears. Now we see the statement. In the statement, author is saying that a pair of helical gears, so we have basically two helical gears, are transmitted 1.15 kilowatt. So the power that these gears are basically transmitting are 15 kilowatts. The teeth are 20 degrees stub in diametral plane. So the system in which we are dealing the design is basically 20 degree stub system. So the pressure angle is 20 degrees and the helix angle is 45 degree. वो भी उसने हमें दे दिया है। The pinion runs at 10,000 RPMs. So the NP is basically 10,000 and 80 mm pitch diameter. So dp is basically equals to 80 millimeters. The gear has 320 millimeters pitch diameter. So dg is 320। ये डाया हमें उसने दे दिया है गियर का। उसके बाद वो हमें क्या कह रहा है, इफ़ द गियर्स आर मेड ऑफ कास्ट स्टील, यानी कि आपके पास दोनों जो गियर हैं पिनियन एंड द गियर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल विच इज़ बेसिकली कास्ट आयरन। सो द अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेस और द अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेंथ जो हमें गिवन है सिग्मा ओ पी which is equal to sigma og because both pinion and gear are of the same material
दैट इज 100 मेगापास्कल। अब हमने फाइंड आउट इस केस में क्या करना है, डिज़ाइन हमने क्या करना है कि डिटरमिन अ सूटेबल मॉड्यूल, मॉड्यूल m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, फेस विड्थ b हमने फाइंड करनी है, स्टैटिक स्ट्रेंथ ws फाइंड आउट करनी है, एंड वेयर w फाइंड आउट करना है, वेयर सिग्मा es एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है दैट इज 618 मेगापास्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में हम क्या करेंगे, वी लिस्ट डाउन ऑल द पैरामीटर्स, इन सबको हम लिस्ट डाउन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं दैट वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट इज पावर, P इज इक्वल्स टू 15 किलो वाट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगी 15 इंटू 10⁻³ वाट्स। प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है, हेलिक्स एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, NP जो है हमें वो दिया हुआ है 10,000 RPM, DP की वैल्यू है 80 mm, तो ये हो जाएगी 0.08 मीटर्स, DG की वैल्यू है 320 mm, तो ये हो जाएगी 0.32 मीटर्स, सिग्मा OP सिग्मा OG दैट इज 100 मेगापास्कल विच इज गिवन हेयर, सो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 न्यूटन पर mm² एंड सिग्मा ES 680 मेगापास्कल या 680 न्यूटन पर mm²। Now we have to find out the module. So first we have to find out the value of the torque that have been transmitted. So the power से हम torque निकालेंगे. So torque is equals to power multiplied by 60 divided by 2 pi np. P over V का जो फॉर्मूला है वहाँ से हम ये टॉर्क निकालेंगे। So power divided by velocity 2 pi np over 60. So आपके पास पावर हमें 15 किलोवाट दी हुई थी, 60 की वैल्यू आ गई 2 इंटू पाई, NP की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10,000। तो यहाँ से हमारे पास जो टॉर्क ट्रांसमिटेड आया दैट इज 13.32 न्यूटन मीटर्स। अब यहाँ से हम टेंजेंशियल टूथ लोड निकाल सकते हैं कि टॉर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस दैट इज बेसिकली फोर्स, सो T डिवाइडेड बाय R। अब इस केस में आपके पास क्योंकि दोनों का सेम मटेरियल है, ये चीज़ इसमें काबिल गौर है, बिकॉज pinion and the gear have the same material, so for the design parameter we will choose the pinion। जब हमें दोनों सेम मटेरियल के दिए होते हैं तो हम क्या ज्यूम करते हैं कि pinion इज द वीकर, तो हम pinion की वैल्यू को चूज करते हैं। तो टेंजेंशियल टूथ लोड क्या हो जाएगा T डिवाइडेड बाई dp/2, ठीक है, बिकॉज वी आर चूजिंग द pinion फॉर द डिजाइन पैरामीटर। डी ये वैल्यू हमने पुट की, dp की वैल्यू उसको डिवाइड कर दिया 2 से। नाउ द टेंजेंशियल टूथ लोड इज 358 न्यूटन्स, ये वैल्यू जो है ये हमें ऑब्टेन हुई। नाउ वी नो दैट द नंबर ऑफ टीथ्स ऑन द पिनियन। अब नंबर ऑफ टीथ्स का क्या फार्मूला है कि dp डिवाइडेड बाय द मॉड्यूल, और मॉड्यूल की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट। सो द टोटल नंबर ऑफ टीथ्स इज इक्वल टू dp/2, dp की वैल्यू हमारे पास 80 है, सो dp/m। यहाँ पे वैल्यू हम 80 इसलिए पुट कर रहे हैं, 0.08 मीटर इसलिए पुट नहीं कर रहे बिकॉज द मॉड्यूल इज ऑलवेज इन मिलीमीटर्स, सो हम मिलीमीटर वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय m। नाउ द फॉर्मेटिव और द इक्वल नंबर ऑफ टीथ्स आर इक्वल टू TP डिवाइडेड बाय cos क्यूब अल्फा। Here the value of TP is 80 divided by m. We will put this value and divide it with cos square 45 degree, cos cube 45 degree, and we have the final answer of formative number of teeth or the equal number of teeth 226.4 divided by module. Next, टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर 20 डिग्री स्टब सिस्टम के लिए आपके पास स्ट्रेंथ फैक्टर की वैल्यू यानी कि y-p की वैल्यू होती है 0.175 माइनस 0.841 डिवाइडेड बाई TE। ये हमारी डिज़ाइन डाटा शीट से इक्वेशन आई है, तो हम जस्ट यहाँ पे TE की जो हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन हुई है उसको रख देंगे। व्हेन विल पुट दिस वैल्यू इज इन मॉड्यूल फॉर्म, so the relation for y-p would be equals to 0.175 minus 0.0037 module. Now we know that the pitch line velocity or the peripheral velocity is pi d n divided by 60। अब क्योंकि हम डिज़ाइन पीनियन के लिए कर रहे हैं तो ये dp हो जाएगा और यहाँ पे np हो जाएगा। So the velocity would be इन मीटर्स पर सेकेंड, सो यहाँ पे हम जो dp की वैल्यू है वो 0.08 यानी कि मीटर्स वाली रखेंगे, तो द वेलोसिटी इज 42 मीटर्स पर सेकेंड।
अब जब वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 42 मीटर पर सेकंड है तो हम सी वी यानी कि वेलोसिटी फैक्टर निकाल लेंगे और वेलोसिटी फैक्टर की डिज़ाइन डाटा शीट से वो वाली इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारी वेलोसिटी इज़ ग्रेटर दैन 20 है। उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75 प्लस अंडर रूट इंटू वी। We'll put these values and the final value of CV is 0.104. Now CV is known. Now, as the B and M are both unknown, अगर इन दोनों में से कोई एक दिया हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस केस में उसने हमें दोनों अननोन दे दिए। So we use the relation that we have discussed in the spur gear also. The maximum face width of the helical gear is 12.5 times to 20 times of the module. ये जो वैल्यू, ये एक रिलेशन है आपका लिटरेचर के अंदर कि 12.5 से लेके 20 टाइम ऑफ द मॉड्यूल आपका फेस विड्थ होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप लेते हैं फिर डिज़ाइन के लिए, अगर आपको ये दोनों वैल्यूज अननोन हो। सो विल टेक बी एज इक्वल टू 12.5 इंटू मॉड्यूल। नाउ वी यूज द रिलेशन डब्ल्यू टी इज इक्वल टू सिग्मा ओ पी मल्टीप्लाई बाई सी वी बी बाई एम इंटू वाई डैश पी। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है? ये लिवाइज इक्वेशन है। अब इसके अंदर डब्ल्यू टी की वैल्यू हम रख देंगे जो हमने पीछे कैलकुलेट किया, दैट इज 358। सिग्मा ओ पी गिवन है दैट इज 100। सी बी की वैल्यू हमने निकाल लिया 0.104। आगे बी की वैल्यू हमने ये एज्यूम किया 12.5 इंटू मॉड्यूल, वो वैल्यू रख दी बाई एम एज इट इज़, और वाई डैश पी की जो वैल्यू एम की फॉर्म में है वो वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। And we had the final relation that is equals to 72 meter square minus 1.5 meter cube that is equals to 358। ये आपके पास क्यूब फॉर्मेट के अंदर एक इक्वेशन आ गई है जहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो व्हेन वी विल solve this cube equation we have the value of m as 2.3। इस वैल्यू को हम होल के अंदर चेंज करेंगे बिकॉज द मॉड्यूल वैल्यूज आर चेंजिंग विद द गैप ऑफ 0.5 mm। सो द मॉड्यूल की जो वैल्यू है दैट इज 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, व्हाइल यू आर पुटिंग द वैल्यूज इन केस ऑफ मॉड्यूल, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो हमेशा मिलीमीटर के अंदर ही आएगी। नाउ आपका जब मॉड्यूल कैलकुलेट हो जाएगा तो जो वैल्यू हमने फेस विड्थ के लिए एज्यूम की थी बी इज इक्वल्स टू 12.5 इंटू एम, सो हम उसके अंदर इस वैल्यू को रखेंगे मॉड्यूल की। सो विल हैव द फेस विड्थ दैट इज 31.25। we'll convert into whole number, so that is 32 millimeters। ये आपके पास फेस विड्थ है। उसके आगे उसने हमसे क्या पूछा हुआ था, that was basically wear load of the gear। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। as we know that the velocity ratio is equals to dg over dp। ये दोनों हमें नोन है तो यहाँ से velocity ratio हमारे पास आ गई 4। जब हमारे पास velocity ratio आ जाए तो हम q कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज W के रिलेशन में Q और K जो है ये अननोन है, बाकी सारे पैरामीटर्स नोन है। सो Q की वैल्यू आती है आपके पास वेलोसिटी रेशियो से। सो Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी आर डिवाइड बाई वी आर प्लस 1। तो यहाँ से Q आ गया 1.6। अब आगे हमें वैल्यू चाहिए K की। K का रिलेशन हमारे पास ये होता है K इज इक्वल टू ई एस स्क्वायर साइन फाई एन 1.4 डिवाइडेड बाई 1 ओवर ई पी प्लस 1 ओवर ई जी। अब इसके अंदर अननोन पैरामीटर्स कौन से? सिग्मा ई एस उसने हमें अभी क्वेश्चन के अंदर दिया है 618, ये वैल्यू हमें नोन है। सिग्मा एन की वैल्यू अननोन है। सिग्मा एन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू tan फाई कॉज ऑफ अल्फा। ये दोनों एंगल गिवन है, यहाँ से हमारे पास सिग्मा एन की वैल्यू आ जाएगी। आगे दो अननोन है हमारे पास EP और EG, बिकॉज EP एंड EG आर ऑफ द सेम मटेरियल एंड दैट आर द वैल्यूज फॉर द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द स्टील। तो ये अगेन हमें डिज़ाइन डाटा बुक से वैल्यू लेनी पड़ेगी फॉर द कास्ट स्टील। यंग्स मॉड्यूलस वैल्यू इज 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये बन जाएगी 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इन वैल्यू को पुट करेंगे जब हम, सो विल हैव द वैल्यू ऑफ K एज 0.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल। ये K की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम W के रिलेशन में दे देंगे वेयर DP इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे DP की वैल्यू अगेन हम 80 पुट कर रहे हैं।
मिलीमीटर वाली वैल्यू, बिकॉज ये सारी जो हमारे पास वैल्यू आ रही हैं न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में। उसके बाद बी की वैल्यू 32 अगेन दैट इज़ इन मिलीमीटर्स। क्यू की वैल्यू जो है दैट इज़ 1.6 डिवाइड, के की वैल्यू हमने रख दी 0.678 एंड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा, फिर अल्फा इज 45। Here we have the final value 555 and 54 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेयर लोड। अगर ये आपकी वैल्यू टेंजेंशियल लोड से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन जो हमने किया वो सही किया। अभी टेंजेंशियल लोड की वैल्यू हमने स्टार्ट में निकाली थी, दैट वाज 358। तो ये वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा लार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिज़ाइन पैरामीटर है दैट इज़ ट्रू। और एक और चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जब आप यहाँ से वैल्यू निकालते हैं इनकी वैल्यूज पुट करके, जो वैल्यू सिग्मा एन की आती है वो रेडियन के अंदर आती है, और यहाँ पे जो वैल्यू हमने साइन के साथ पुट करनी है वो हमने डिग्रीज में पुट करनी है। तो जो भी वैल्यू यहाँ हमारे पास आएगी वहाँ हम उसको चेंज कर लेंगे दोबारा इनटू डिग्री। So that was the first design case for the helical gear. Now we'll discuss the second case. अब इसकी स्टेटमेंट जो है इसको देखते हैं। A helical cast steel gear with 30 degrees helix angle, अल्फा उसने हमें दे दिए, has to transmit 35 kilowatts पावर दे दी है उसने हमें at 1500 rpm, और उसने हमें n दे दिया। If the gear has 24 teeth, अब उसने यहाँ पे gear की बात की है, their TG is 24, determine the necessary module, मॉड्यूल हमने फाइंड आउट करना है, पिच डायामीटर, DC हमने फाइंड आउट करना है, फेस विड्थ फाइंड आउट करनी है फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम। इसका मतलब यह कि अल्फा इज 20 डिग्रीज। The static stress for the cast steel may be taken as 56, so sigma O is basically 56। The width of the face may be 3 times of the normal pitch, ये हमें उसने रिलेशन दे दिया, B is equal to 3 multiplied by Pn, और उसने हमें सिस्टम दे दिया जिसके लिए डेप्थ का जो एंगल है यानी कि वाई डैश हमने कहाँ से लेना है, दैट इज 0.154 माइनस 0.912 डिवाइड बाई टी ई, और टी ई यहाँ पे क्या है, फॉर्मेटिव और द इक्वलेंट नंबर ऑफ टीज। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मॉड्यूल हमने फाइंड आउट करना है, फिर सर्कल डायामीटर हमने फाइंड आउट करना है। सो हमें पावर दी हुई है, सबसे पहले हम वहाँ से टॉर्क निकाल लेते हैं, P over V। So P multiplied by 60 divided by 2 pi n। Here n is of G because gear सिर्फ उसने सिंगल हमें बताया उसका डेटा, सुपीनियन का इसके अंदर चक्कर नहीं है। So जो चीज़ें gear की गिवन है हम वो पुट करते हैं। P multiplied by 60 divided by 2 pi into 1500 rpm। So the value for the torque is 223 into 10 raised to power 3 Newton per mm, Newton into mm। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम अब क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ टीथ जो है फॉर्मेटिव या इक्वल नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट करेंगे। उसका हमारे पास क्या रिलेशन होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ यानी कि टी जी डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब अल्फा। सो अल्फा इज 30 डिग्रीज, टी जी इज 24, सो द टी ई वैल्यू इज 37। ये वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो वाई डैश हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो रिलेशन हमें दिया हुआ। उसके अंदर हमने टी ई की वैल्यू रखी, सो द स्ट्रेंथ फैक्टर इज 0.129, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। एज वी नो दैट द टेंजेंशियल लोड जो होता है दैट इज इक्वल टू टी ओवर आर, मेरे आर जो है वो क्या होगा, डाई डिवाइडेड बाई 2, सो टी डिवाइडेड बाई टी जी ओवर 2। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हमें डाया ऑफ द गियर जो है वो अननोन है, तो वी यूज द रिलेशन डाया इज इक्वल्स टू मॉड्यूल इनटू टीथ। सो हम ये पुट कर देंगे, सो डब्ल्यू टी जो है वो मॉड्यूल की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू टी इज 18600 डिवाइडेड बाय मॉड्यूल। ठीक है, अब हम इसकी निकालेंगे पिच लाइन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, पाई डी एन ओवर 60। अब अगेन d इज अननोन, तो उसकी जगह पे m इंटू टी जी पुट कर देंगे। सो द वेलोसिटी अगेन वुड बी इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल। ये हमारे पास आ जाएगी 1885 मॉड्यूल इंटू mm पर सेकेंड। ये mm इसलिए ये वैल्यू हमारे पास आई बिकॉज मॉड्यूल जो है वो इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था। सो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी इस रिलेशन से आप उसको 100 से डिवाइड कर देंगे,
sorry 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे टू कन्वर्ट इनटू द मीटर पर सेकेंड, सो दिस वैल्यू विल बिकम 1.885, so that is the value for v. So velocity factor क्या होता है, cv is equals to 15 divided by 15 plus v. सो इसके अंदर वेलोसिटी की वैल्यू हम रख देंगे, सो cv की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फैक्टर, और वो वेलोसिटी फैक्टर cv हमारे पास मॉड्यूल के टर्म्स में आएगा, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1.885 इंटू मॉड्यूल. अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास मॉड्यूल के टर्म्स में है. नाउ वी कैन पुट दीज वैल्यूज इनटू द लिवाइज इक्वेशन, दैट इज wt is equals to sigma o into cv v pi m into y dash. नाउ अब हमारे पास सिग्मा और सी वी है, बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर उसने रिलेशन दिया है कि दैट इज 3 टाइम्स इंटू पी एन, वो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है. पाई एम को हमने एज इट इज लिख दिया और वाई डैश की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है. फॉर केस ऑफ अ हेलिकल गियर पी एन इज बेसिकली इक्वल टू पी सी इंटू कॉज ऑफ एल्फा, हमने वो रिलेशन इसके अंदर डाल दिया. वेयर पी सी इज इक्वल टू पाई इंटू मॉड्यूल, हमने उसको पाई इंटू मॉड्यूल कर दिया. तो ये मॉड्यूल के टर्म में सारी की सारी जो है ये इक्वेशन बन जाएगी. उसके बाद हम डब्ल्यू टी की जो वैल्यू थी वो मॉड्यूल के टर्म में थी, बाकी सारी वैल्यूज मॉड्यूल के टर्म में थी, हम ऐड कर देंगे. जो फाइनल हमारे पास रिलेशन आएगा यहाँ से, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल, और ये आपके पास एक क्यूब की फॉर्मेट में एक इक्वेशन आएगी. हम इस इक्वेशन को हल करेंगे, विल सॉल्व द इक्वेशन. सो द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूल इज 5.5 से 6 मिलीमीटर्स. सो मॉड्यूल की वैल्यू अब हमें नोन हो गई है. एज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूल इज नोन वी कैन फाइंड आउट द पिच सर्कल डाया. सो द डी जी इज इक्वल्स टू मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाय द total number of t's that were 24. Now we are multiplying with the module that is 6, so the dg is 144 millimeters. अब फेस विड्थ हम कहाँ से निकालेंगे, जो रिलेशन हमें दिया था b इज इक्वल टू 3 इंटू पी एन, और पी एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे पी सी इंटू कॉस के अल्फा, और पी सी क्या है पाई इंटू एम. अगेन मॉड्यूल इज नोन, so the value of face width is equal to 50 mm. फेस विड्थ भी हमने निकाल ली है, और जो एंड में हमसे चीज़ पूछी गई थी दैट वाज द एंड थ्रस्ट. सो द एंड थ्रस्ट इज बेसिकली इक्वल टू टेंजेंशियल लोड इनटू कॉज ऑफ अल्फा. टेंजेंशियल लोड जो था दैट इज 18600 ओवर मॉड्यूल मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ अल्फा. हियर द मॉड्यूल वैल्यू इज 6, उसके अंदर हम पुट कर देंगे. सो द फाइनल रिलेशन, the answer for the end thrust is 17 into 19 Newton. So that is basically the end thrust that have been generated in this teeth. So this lecture was all about the design of the helical gear. I hope you have understand the lecture. So that is all from my side. Allah Hafiz.